Dear students, now today we will discuss the motion of charged particle in an electric field. Here the electric field is perpendicular and we having one of the charged particle. Let you discuss, let you proceed. Here it is given to you. We having one of the plate, positive plate, this one is negative plate. We all know very well electric field is acting from positive to negative 1. Electric field E is given to you, as well as this system of plates is called as capacitor. Here the length of this capacitor is given to you, this plate having its length L, and we have to discuss the motion of charged particle in this electric field. One of the charged particle has entered here, the charged particle Q is here and it entered with velocity V0 in this perpendicular electric field. We know very well it being positive charge, this plate is negative and this negative plate will definitely attract this plus Q and this charged particle will move like this. The charged particle will have its trajectory like this. This path is identical as that of the projectile motion. Here we have to apply the same concept as we discussed projectile motion. The motion is having two-dimensional nature, and to discuss this motion we require the x-axis as well as y-axis. तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में है, लेट इट बी दिस बी द y एक्सिस, दिस बी द x एक्सिस. इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग y एक्सिस, ये क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में लगा हुआ है. हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही होता है. हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है? द सिंपलेस्ट वे, विल पुट अ चार्ज देयर and if that charge particle experiences some force, it means electric field is existing. Here the electric field is along this y-axis and therefore this plus q charge will experience a force in same direction. It means where there is electric field there will be force. तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड y-axis में है तो जो फोर्स लगेगा इस पे वो फोर्स भी कहाँ होगा? y-axis में होगा. और अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है तो हम अच्छी तरह जानते हैं इसका एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा. यहाँ एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर. एक्स एक्सिस में कोई फील्ड नहीं है, तो एक्स एक्सिस में अगर कोई फील्ड नहीं है इट मींस एक्स एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. लेट द इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट एंड इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, देयरफॉर एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी रहेगी दिस वेलोसिटी will be v naught and this v naught seems to be constant. ये velocity throughout the motion constant रहेगी, ये velocity change नहीं होगी. अब इस क्वेश्चन में first of all we have to check what is the nature of this path. You have to prove that the path of charged particle in perpendicular electric field is parabolic in nature. Let you check it. Now we have to find out the path of this charged particle here and you have to prove that the path of charged particle will be parabola. We all know very well to prove any kind of trajectory we have to establish a relation between x-axis as well as y-axis, as this motion is two-dimensional motion. Anyway, you have to find out a relation between x and y. So let me discuss for x-axis as well as y-axis. जब भी हम टू डायमेंशनल मोशन को डिस्कस करते हैं तो हमें इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रिंसिपल को यूज करना पड़ता है. मींस आपको एक्स एक्सिस को अलग से पढ़ना है और वाई एक्सिस को अलग से पढ़ना है, अब फिर इन दोनों को हमने कोरिलेट करना है. वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा. लेट अस डिस्कस अलोंग एक्स एक्सिस. अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ देखते हैं, इसको चेक करते हैं, हियर इन एक्स एक्सिस वी ऑल नो वेरी वेल द इक्वेशन ऑफ मोशन इज एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. सिंपली हमने मोशन को स्टडी करना है तो x is equal to ux plus half xt square आ गया. जो गिवन पैरामीटर्स हमें हैं, लेट यू पुट देम. ux means initial velocity on x axis. There in this case the initial velocity given to the charged particle is v naught. तो यहाँ से x is equal to initial velocity is v naught into t plus half axt square. ax is 0. Why it is so? The very important point, the velocity along x axis remains constant. ये constant रहेगा, यहाँ acceleration नहीं होगा. एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जहां फोर्स होगा. हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं F इक्वल टू ma. जहां फोर्स होगा वहां एक्सेलरेशन होगा, और फोर्स कहां होगा? फोर्स वहां होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हम अभी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी कर रहे हैं.
It means electric field is acting downward. It means force will be downward as well as acceleration will be downward. There is no acceleration in this x-axis here. तो यहाँ पे acceleration 0 आ जाएगा. In this way, x is equal to v naught t and therefore we can have this time t is equal to x upon v naught. ये हमने इक्वेशन नंबर 1 को ड्रॉ कर लिया है. Now we'll discuss along y-axis. तो अगर हम y-axis में इसको चेक करते हैं, then what will be the result? It will be y is equal to uyt plus half ay t square. y is equal to uyt is 0. uy is 0, तो ये अपने आप 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ ay into t square is to be kept in mind. Here in this situation, why this uy become equal to 0? बहुत आराम से समझना है. यहां पे जो चार्ज पार्टिकल को हमने वेलोसिटी इंपार्ट किया है स्टार्टिंग में t is equal to 0 पे, वो वेलोसिटी x एक्सिस पे है, यानी इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में है. y एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है. वो बात अलग है कि थोड़ा आगे मूव करने के बाद चार्ज पार्टिकल इस तरह से बेंड हुआ है. चार्ज पार्टिकल की जो बेंडिंग हुई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुई है. स्टार्टिंग में y एक्सिस में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, x एक्सिस में वेलोसिटी है. देयरफॉर दिस uy इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस. इट इज टू बी केप्ट हियर 0. इन दिस वे y कम्स आउट टू बी हाफ ay t स्क्वायर. अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये है कि हमें यहां से ay को भी सॉल्व करना पड़ेगा. t का वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया है. तो लेट यू कैलकुलेट फॉर ay. हाउ टू फाइंड आउट दिस ay? लेट यू हैव दिस फॉर ay. एक्सेलरेशन हम यहां से निकाल सकते हैं. एज यू नो वेरी वेल, द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू f by q. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है. तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? QE. एंड f इज इक्वल टू ma. ma इज इक्वल टू QE. तो देयरफॉर एक्सेलरेशन a कितना आ जाएगा हमारे पास? QE by m. This one is the acceleration in this situation, and here this electric field is acting along y-axis. Therefore, this acceleration will be along y-axis. This is the magnitude of acceleration here. तो इस acceleration की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेंगे और टाइम हमने यहाँ से कैलकुलेट कर रखा है. तो let me put the values. y is equal to half. ay is here. It is here QE by m into t square. T square is here x upon v naught. Its whole square. In this way, y is equal to QE by 2mv naught into x square. And we know very well this equation is the equation of parabola. Here y is proportional to x square, which proves that the motion of charged particle is parabola in nature. Now secondly, we have to calculate the velocity of the charged particle when it leaves the plate here. तो जब ये चार्ज पार्टिकल यहां से बाहर निकलेगा इस पॉइंट से, तो उस टाइम पे इसका वेलोसिटी कितना होगा? अगेन इस 2 डायमेंशनल मोशन. एक वेलोसिटी इसका x एक्सिस में होगा और डेफिनेटली एट द सेम टाइम एक वेलोसिटी इसका y एक्सिस में होगा. एक x एक्सिस में आ गया, एक y एक्सिस में आ गया. तो अब हमें दोनों वेलोसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो लेट यू कैलकुलेट द वेलोसिटी. टू चेक द वेलोसिटी हियर वी हैव टू यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन. लेट यू डिस्कस फॉर x एक्सिस. तो अगर हम x एक्सिस में चेक करते हैं, देन नो वेरी वेल हियर द वेलोसिटी vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, and vx is equal to ux is v naught and ax is 0 into t is here. Therefore, vx is equal to v naught. We got this one. Let it be equation number 3 is here. यहां पे बहुत केयरफुली समझना है क्योंकि x एक्सिस में तो हमें पता है वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है. वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. इट मींस vx रिमेन v naught here. Let us discuss along y axis. It will become here vy is equal to uy plus ayt. Let me put the value. Vy uy 0. As I explained earlier, the initial velocity along y-axis is 0 plus ay into t. We know this ay. Ay is here qe by m. It is here qe by m into t is here. Now in this way, vy become equal to qe by m into t. अब जो t यहाँ पर आया है, इस t को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. x एक्सिस में जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट की थी, वहां से हमने t को कैलकुलेट किया था, क्योंकि x एक्सिस में हमने यूज किया था यहाँ पे here x is equal to v naught into t. So therefore t comes out to be x upon v naught. और here in this problem this x is given to you L. चार्ज पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया? L कवर किया है. Therefore t will be equal to L upon v naught. ये हमारे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है और यहाँ से मैंने t का वैल्यू L upon v naught यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं. तो vy कितना हो जाएगा? It is here qe by m into t is L upon v naught is the velocity along y-axis. Is the equation number 4 is here.
नाउ इट बीइंग द 2 डायमेंशन मोशन, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज दिस वन बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी v कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। यहाँ से हम vx का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं एंड vy का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। दीज पैरामीटर्स विल बी गिवन टू यू, यू हैव टू पुट द वैल्यू, यू कैन हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। नाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, लेट दिस एंगल इज अल्फा। एंगल हमने कितना ले लिया है, अल्फा यूज कर लिया है, तो दिस अल्फा बिकम इक्वल टू, हियर डायरेक्शन विल बी टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। डायरेक्शन दिस एंगल इज अल्फा, दिस वन इज vy, यहाँ से vy है और ये vx है, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। यहाँ पे हम इक्वेशन 3 एंड 4 से vx और vy की वैल्यू पुट करके इसके डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। लेट मी डिस्कस अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक एंड इट इज हियर। द क्वेश्चन इज a charged particle of charge 2 microcoulomb and mass 10 milligram moving with a velocity of 1000 meter per second enters a uniform electric field of strength 10 raised to power 3 Newton per coulomb directed perpendicular to its direction of motion. Find the velocity and displacement of the particle after 10 seconds. Here this question is totally based on the topic we discussed here. It is given to you, charge Q is given to you, it is here 2 microcoulomb, its mass is given to you 10 milligram. आपको 10 milligram को कन्वर्ट करना पड़ेगा kg में, SI सिस्टम में, it is here 10 into 10 raised to power minus 3 ग्राम। इसको फिर चेंज करेंगे हम 10 into 10 raised to power minus 3 and gram is 10 raised to power minus 3 kg and it comes out to be here 10 into 10 raised to power minus 6 kg. This mass is given to you, this charge is given to you, the electric field is mentioned to you, 10 raised to power 3 Newton per coulomb is the perpendicular electric field that is given to you, and the initial velocity along x-axis is given to you, velocity along x-axis that is v naught and that is the ux, and this velocity is given to you 1000 meter per second. Here this question is identical one is given to you. We having the two plates like this is the positive plate, this one is negative plate, and electric field is acting this one. Here charge particle has entered here and charge particle will bend like this. और आपको ये पूछा गया है कि चार्ज पार्टिकल की जो यहाँ बेंडिंग हुई है तो इसका नेट वेलोसिटी v कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। लेट यू कैलकुलेट दिस वेलोसिटी फर्स्टली। द फर्स्ट पार्ट इज हियर, आई एम डिस्कसिंग टू फाइंड आउट वेलोसिटी, तो वी हैव टू डिस्कस अलोंग x एक्सिस एज वेल एज अलोंग y एक्सिस। तो x एक्सिस में जब भी हम चेक करेंगे वी नो वेरी वेल द वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इन सच प्रॉब्लम रिमेन्स कांस्टेंट एज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं फोर्स होगा, वहीं एक्सेलरेशन होगा, और जहाँ एक्सेलरेशन होगा वहीं वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में है, इट इज हियर x एक्सिस हमने एज्यूम कर लिया, y एक्सिस हमने ये ले लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में है, इट मीन्स फोर्स भी कहाँ होगा, y एक्सिस में होगा, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा, y एक्सिस में होगा। तो x एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं है, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर vx will be equal to v naught will be equal to, it is here 1000 meter per second। ये वेलोसिटी हमें गिवन है, x एक्सिस में वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया है। लेट यू कैलकुलेट द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस में दैट यू नो वेरी वेल, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। y एक्सिस में वी ऑल नो वेरी वेल द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इनिशियली 0 एज द चार्ज पार्टिकल हैज प्रोजेक्टेड अलोंग x एक्सिस। y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी इसको नहीं दिया गया है, इसको x एक्सिस में प्रोजेक्ट किया गया है, इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है x एक्सिस में, इसको हमने x एक्सिस अज्यूम किया है। तो यहाँ प्रोजेक्शन इसका इधर हुआ है, y की तरफ नहीं है, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 हो जाएगा प्लस ay इंटू टी। इस प्रॉब्लम में आपको गिवन है कि टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद हमें इसको स्टडी करना है, तो आपको ay चेक करना पड़ेगा। तो वी ऑल नो वेरी वेल दिस ay इज, हम अच्छी तरह जानते हैं E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, देयरफॉर F इज इक्वल टू क्यू ई एंड F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू क्यू ई एंड देयरफॉर ए वाई विल बी इक्वल टू क्यू ई बाई एम। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर लेंगे, तो वी वाई कम्स आउट टू बी ए वाई इज हियर क्यू ई बाई एम इंटू टी। लेट यू पुट ऑल द वैल्यूज हियर, वी वाई इज क्यू, क्यू इज द चार्ज दैट इज गिवन टू यू 2 माइक्रोकूलम, इट इज हियर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। इलेक्ट्रिक फील्ड E is given to you 10 to the power 3, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया है,
m is the mass of charged particle. We got it here, 10 into 10 power minus 6 kg, 10 into 10 power minus 6 kg, and time is given to 10. अब इसको हम यहाँ से चेक कर लेते हैं. It is here 10 power minus 6 here, it is here, 10 is here, 10 is here. It comes out to be 2000 मीटर पर सेकेंड. तो इन दिस वे हमने ये y में वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया है. ये x में वेलोसिटी पहले मिल गया था. तो व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? देन वी नो वेरी वेल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v will be equal to under root of vx square plus vy square, and that comes out to be, it is here 1000 square plus 2000 square, and after solving it comes out to be 1000 under root 5 meter per second. In this way we solve the first part of the question to find out the magnitude of velocity, and we got it here. Now here in second part we have to find out the displacement. The displacement we know very well, we having here x-axis as well as y-axis. So let us discuss along x-axis. The x-axis में displacement का फॉर्मूला हम अच्छी तरह जानते हैं, x is equal to uxt plus half axt square. The x is equal to ux is the initial velocity along x-axis, और आपको given है initial velocity along x-axis is 1000 मीटर पर सेकेंड. It is here 1000. कितने टाइम बाद डिस्कस करना है? 10 सेकेंड बाद डिस्कस करना है. प्लस हाफ ax, ax is 0 इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या रहेगा? 0 रहेगा. यहाँ पे x कम्स आउट टू बी, इट इज 10,000 मीटर. ये हमने मीटर में इसको चेक कर लिया है, मीटर में इसको मेंशन कर लिया है. तो ये हमने x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व कर लिया है. ये पार्ट 0 हो जाएगा. सिमिलरली लेट यू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस. इट कम्स आउट टू बी y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर. y इज इक्वल टू uyt, वी ऑल नो वेरी वेल the initial velocity along y axis is 0 into t is 10 second plus half of ay हमने डिस्कस किया है अभी, it is here qe by m into t square is constant. तो y comes out to be half of qe t square by m. यहाँ पे प्रीवियस केस में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन हियर. वो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया है. तो यहाँ से अगर हम रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ q, चार्ज q is given to you, it is 2 micro to 10 to the power minus 6. Electric field is given to 10 to the power 3. Time is 10 second. 10 into 10, 10 square हमारे पास है. Over mass is given to you, and it is here 10 into 10 to the power minus 6 kg. 10 into 10 to the power minus 6 kg. After solving, it comes out to be, अगर हम यहाँ से देखें इस बात को, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10,000 मीटर अगेन. तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो भी 10,000 है, y भी कितना है? 10,000 है. द डिस्प्लेसमेंट वी नो वेरी वेल, डिस्प्लेसमेंट इज बीइंग ए वेक्टर क्वांटिटी. दिस s इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द डिस्प्लेसमेंट हियर. तो कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 10,000 अंडर रूट 2 मीटर. एंड वेक्टर फॉर्म में हम ये भी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 10,000 i प्लस 10,000 j मीटर इज द कंप्लीट आंसर हियर. एंड वेलोसिटी v जो आपने सॉल्व करके निकाला था इसको प्रीवियस केस में, इट कम्स आउट टू बी हियर 1000 i कैप प्लस 2000 j कैप मीटर पर सेकेंड. ये मैंने दोनों आंसर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है. इज द सॉल्यूशन.